Good evening, children. In the last lecture, we have seen the numericals in the exercise from A to C in the question number 5. After that, in today's lecture, we are going to solve the D to G numericals. Okay. So listen here. An object thrown vertically upward reaches a height of 500 meter. कौन सी भी ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट है विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच इज हाइट 500 मीटर. जैसे मेरे पास एक बॉल है जिसे मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो वो इनिशियल पॉइंट से उसका जो हाइट है वो 500 मीटर है. ठीक है. देन व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी. व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? यू हैव टू कैलकुलेट द u. हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ? Means you have to calculate the time. Which quantity we are given that given. हम यहाँ पे given लिखेंगे. In that given s is equal to what? 500 meter. Okay. So s is equal to 500 meter. Then what was its initial velocity? हमने कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका? We doesn't know. We have to calculate. Okay. So u is equal to what? That is a question mark. Then how long will the object take to come back to the earth? उसके लिए आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है. ओके. देन v आपको पता है v क्या होगा? एक स्टेज पे जाके v फाइनल वेलोसिटी इसका कितना होगा? 0 होगा. ठीक है. तो हम अभी among that formula, which formula will you apply? कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे? हम हमारे पास कौन सा क्वांटिटी है? हमारे पास v है जो 0 है. ठीक है. फिर हमारे पास s है. ठीक है. हमारे पास क्या नहीं है? u नहीं है, t नहीं है. ठीक है. तो हम this one we cannot use because we doesn't know the u and t. ठीक है. तो हम ये नहीं यूज कर सकते. ठीक है. इसमें भी u प्लस at है. We doesn't know. ओके. हम ये भी हमें पता नहीं, तो हम ये भी नहीं यूज कर सकते. हम यूज कौन सा कर सकते हैं? दिस वन वी कैन यूज इट. ओके. सो इसमें हमें v की वैल्यू पता है कि फाइनल वेलोसिटी इसमें 0 है. u हमें कैलकुलेट करना है. 2 कांस्टेंट है. a मतलब एक्सेलरेशन g हमें दिया है यहाँ पे. अज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमारे पास g की वैल्यू भी है, हमारे पास s की वैल्यू भी है, हमारे पास v की भी वैल्यू है. तो वी कैन इजीली कैलकुलेट the initial velocity. Okay. So we are going to apply the formula v square is equal to u square plus twice gs लिखेंगे because acceleration due to gravity है. ठीक है. But here given the g is equal to 10 meter per second, and we know that when we object thrown vertically in the upward direction, then the velocity and acceleration they are in the opposite direction. So here we take the g is equal to minus 10 meter per second square. Okay. So v square is equal to v is a 0. ठीक है. So 0 का square तो 0 ही. Then u square as it is plus 2 into g that is 10 meter, but we are taking minus 10. Okay. minus 10. Okay. Then s की वैल्यू क्या है हमारे पास? 500 मीटर. ओके. सो यहाँ पे u स्क्वेयर प्लस 10 इंटू 2 20 इंटू 5 ये कितना होता? 10,000. ओके. बट माइनस. ओके. माइनस. और ये u जो है इज इक्वल टू के इधर शिफ्ट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? c माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 10,000. तो यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसल, टू गेट कैंसल. सो u स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इट विल बिकम 10,000. u इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट 10,000 and u is equal to what? 100. Okay. 100 meter per second. So this is your initial velocity. ये आपकी हो गई initial velocity. ठीक है. मतलब उन्होंने क्या बोला कि जैसे हमने एक पर्टिकुलर हाइट पे है, हमने ग्राउंड सरफेस पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक आदमी है जिसने एक बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन किया. ठीक है ना.
an object thrown vertically upward direction at a certain point at a certain time, the velocity of that object will be 0. It's a final velocity. After that, it reaches at a particular height, it's get come back to the earth, okay, because earth attract this object towards itself. Then in that case, the acceleration is a due to gravity, it will be a negative, because velocity and acceleration, these are in the opposite direction, okay ना. So we have taken here a minus 10 meter per second square. अभी यहाँ से मतलब from the surface of the ground to at particular height, इस बॉल को जाने में जितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है ये तो हमें पता नहीं, हमें टाइम निकालना है, ठीक है. जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम उस ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द हाइट टू द ग्राउंड सरफेस आने में लगेगा, ठीक है. तो टी हमें अभी निकालना है. तो हमारे पास अभी कौन कौन सी क्वांटिटीज है? वी हैव यू, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, ठीक है. देन हमारे पास एस है, ठीक है. सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द टी, ओके. सो नाउ आपको यहाँ पे अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेकेंड वन, ठीक है. तो अभी हम अप्लाई करेंगे, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है. एस इज 500, ओके. यू अभी आपको यू 100 मीटर पर सेकंड नहीं लेना है. क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट करेगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी होगी अभी 0. फिर आफ्टर सम टाइम ये कहाँ पे जा रही है? इट गोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ठीक है. तो आपको अभी यहाँ पे u की वैल्यू क्या लेनी है? यहाँ पे 0 लेनी है, ठीक है. 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू, अभी यहाँ पे g भी आपको -10 नहीं लेना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट अभी नीचे आ रही है, ठीक है. तो नीचे आते हुए हम क्या लेते हैं? जी की वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे यहाँ पे. सो 10 इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है. तो अभी यहाँ पे ये तो 0 हो गई क्वांटिटी, तो 1/2 एज इट इज 500, 1/2 इंटू, ठीक है, इंटू 10 टी स्क्वायर, ठीक है. तो आप ऐसे भी से कैंसिल कर सकते हो, 5 जा, ठीक है. तो ये क्या होगा यहाँ पे? 500 इज इक्वल टू व्हाट? 5t स्क्वायर. सो 500 अपॉन 5 इज इक्वल टू t स्क्वायर. सो 5 1 जा, मतलब ये कितना आता है? 100. 100 इज इक्वल टू व्हाट? t स्क्वायर. सो √100 इज इक्वल टू व्हाट? t. सो देयरफॉर t इज इक्वल टू व्हाट? 10 सेकेंड. मतलब आपकी ऑब्जेक्ट जब आप नीचे से वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन करते हो तो इसे टोटल टाइम जो लगता है वो कितना लगता है? t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है. इट रिक्वायर्स 10 सेकेंड टाइम टू रीच टू द अपवर्ड डायरेक्शन. आफ्टर दैट द सेम वेलोसिटी सेम टाइम इट गोज टू द ग्राउंड, ठीक है ना. सेम वेलोसिटी से नीचे आती है, तो इसको कितना टाइम लगेगा? सेम टाइम लगेगा. तो आपको क्या करना है? यहाँ पे टोटल टाइम हमें निकालना है, दैट इज t1 प्लस t2 इज इक्वल टू व्हाट? 10 प्लस 10. सो t इज इक्वल टू व्हाट? 20 सेकेंड, ठीक है. 20 सेकेंड का हमें यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है. वंस अगेन, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है ना. हमने यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े होके एक ऑब्जेक्ट जो है, एक बॉल जो है, उसे ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है. एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया, ठीक है. तो आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी वहां पे जो होगी वो v इज इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि वहां पे कुछ सेकंड के लिए बॉल वहां पे रुकेगा, फिर अगेन इट कम बैक टू द अर्थ, ठीक है ना. तो इनिशियल वेलोसिटी हमने उस बॉल को कितनी प्रोवाइड की, तो ये हमें निकालना है, हमें दिया नहीं है, ठीक है. तो हमें u कैलकुलेट करना है. जब बॉल नीचे से ऊपर जाता है तब ग्राउंड सरफेस से पर्टिकुलर हाइट जो हमें दी है, दैट इज 500 मीटर, ठीक है. देन फिर से ये बॉल नीचे आता है, तो उसके लिए हमें क्या, कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम उसको नीचे से ऊपर जाने में लगता है और सेम टाइम उसे ऊपर से नीचे में आने में लगता है. तो आपको टी भी यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो जितनी क्वांटिटीज हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू दैट क्वांटिटी वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस gs. तो हमारे पास v क्वांटिटी है, मतलब v की वैल्यू है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी. v क्या होती है? आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हमारे पास है. इनिशियल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, प्लस 2 ये हमारा कांस्टेंट है.
जी की वैल्यू हमें अज्यूम करके दी है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड अप्लाई करो। तो यहाँ पे हमने निगेटिव लिया क्योंकि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो इट इज अ -10 ओके इनटू आपकी जो हाइट है 500 मीटर, मतलब एस की वैल्यू हमारी 500 मीटर, ठीक है। तो यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10, ये आपका हो गया 20 इंटू 5 होता है 100, तो ये हो गया आपका टोटल 10,000 ओके। तो इस u को हमने इज इक्वल टू के इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये होगा माइनस, सो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दिस प्लस एंड दिस माइनस, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 10,000, यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 10,000, दिस माइनस माइनस साइंस विल गेट कैंसल्ड, okay, so u is equal to what, under root 10,000, so it is a 100 meter is a perfect square of 10,000, u is equal to what 100 meter per second, this is your initial velocity, मतलब आपने 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी सप्लाई की है, तब वो बॉल आपके ग्राउंड सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट पे, ठीक है, आके पहुंचा, देन उसे नीचे आने में कितना टाइम लगता है ग्राउंड पे। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द t. So according to which formula? According to the second equation of motion, s is equal to ut plus 1/2 gtqs, because we have the value of s, height हमारे पास है, then u हमारे पास 0 है, क्योंकि हमें पता है पर्टिकुलर हाइट पे जाके इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होती है। जब वो नीचे आता है तो नीचे आते वक्त हम ये इस v को हम भूल जाएंगे, हम सिर्फ क्या कंसिडर करेंगे कि u हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे कि बॉल जब नीचे आता है पर्टिकुलर हाइट से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो हम यहाँ पे 0 लेंगे, g जो है जो प्लस 10 ही लेंगे हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके। देन पुट द ऑल द वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला, देन you can get the time that is a 10 second.